سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے معاشرے میں عدم برداشت کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ ضلع محمد میں زمین کا تنازع 3 جانیں لے گیا۔ پولیس نے کارروائی شروع کر دی۔ قبائلی ضلع محمد کی تحصیل حلیم زئی کے علاقے 2 فریقین کے درمیان زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 افراد قتل جبکہ 2 شدید زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس آ پہنچی اور مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ فریقین کے درمیان 3 سال سے زمین کا تنازع چلا آ رہا ہے۔ کوہات میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شہید پولیس اہلکار ساجد کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ریجنل پولیس آفیسر، ڈی پی او اور ڈی سی کوہاٹ سمیت عسکری اور سول حکام شریک ہوئے۔ شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کرائی گئی۔ شہید کانسٹیبل کو آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ کانسٹیبل ساجد پولیو ڈیوٹی پر مامور تھا اور نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی۔ کانسٹیبل ساجد موقع پر دم توڑ گیا تھا۔ خیبر پختونخوا پولیس کی سربراہ معظم جاں انصاری نے کہا کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ذمہ داری ہے۔ پولیس کی لازوال قربانی اور شہادتوں پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان کا گنجان آباد شہر اوسطا محمد انتظامیہ اور منتخب نمائندگان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عوام کے لیے تفریحی پارک اور کھیلوں کے میدان تک نہیں بنائے گئے۔ شہریوں نے حکومت سے ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے چاکر خان۔ بلوچستان کے گرین بیلٹ میں واقع نصیر آباد ڈویژن کا گنجان آباد شہر اوسطا محمد اس 21ویں صدی میں بھی پارک جیسی سہولت سے محروم ہے۔ کم و بیش 4 لاکھ کی آبادی والے شہر میں عوام کو تفریحی سہولتیں میسر نہیں۔ شام کے اوقات میں بالخصوص مقامی ہوٹلوں اور چائے خانوں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ پارک نہ ہونے کی صورت میں تفریحی مقامات کے فقدان کے سبب نوجوان اور بچے بھی اسکول سے فراغت کے بعد کھیلوں کے میدان کا رخ کرتے ہیں۔ تاہم شہر میں مناسب گراؤنڈز اور تفریحی مقامات میسر نہ ہونے کے سبب منشیات کے علاوہ سماجی برائیوں اور غیر اخلاقی سرگرمیوں کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ تاہم استامل کے عوامی حلقوں نے حکومت بلوچستان سے اپیل کی ہے کہ شہر میں فی الفور پارک اور آبادی کے لحاظ سے کھیلوں کے گراؤنڈز تعمیر کرا کے لوگوں کو تفریحی مواقع فراہم کریں۔ کیمرہ ٹیم محمد علی بلوچ کے ساتھ چاکر خان دیناری، سچ نیوز، اوسطا محمد۔ سندھ کا شہر کند کوٹ مسائل کا گڑھ بن گیا۔ میونسپل انتظامیہ نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ لیا۔ شہری اپنے پیاروں کے جنازے سیوریج کے گندے پانی سے گزارنے پر مجبور ہیں۔ کند کوٹ میونسپل انتظامیہ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ شہر کی سڑکیں سیوریج کے پانی کے زد میں آ گئیں۔ نواحی علاقے گولیمار کے رہائشیوں کی جنازہ سیوریج کے گندے پانی سے گزارنے کی ویڈیو نے دل دہلا دیے۔ میونسپل کمیٹی میں 400 سے زائد ملازمین ہونے کے باوجود شہر گندگی کی لپیٹ میں ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کشمور ایریگیشن کالونی نمبر 1 کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئی۔ انتظامیہ کی نااہلیاں سامنے آ گئیں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں۔ شہری کیا کہتے ہیں آپ بھی جانیے۔ یہ کلاچی محلہ میں گندگی کی ایسی صورتحال ہے کہ آئے روز جو ہے ہمارے بچے ٹائیفائڈ بخار اور ملیریا جیسے موذی مرض میں مبتلا ہیں، لیکن یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں گندگی کا ماحول۔ ہمارا مطالبہ ہے ایکسی این گڈو براج اظہر الدین بھٹو سے اور چیف انجینئر گڈو براج سے کہ فی الفور جو ہے اس ہمارے ڈریننگ سسٹم کا جو ہے نوٹس لے کر یہ ہمارا جو ہے مسئلہ حل کیا جائے۔ بھائی ہمیں بہت تکلیف ہے، انتظامیہ بالکل توجہ نہیں دے رہی۔ یہاں ہم بہت پریشان ہیں۔ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا رستہ جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، یہاں سے نہیں گزر سکتے۔ عورتیں، بچے، مائیں بہت پریشان ہیں۔ سندھ کے شہر خیرپور ناتھن شاہ کے نوجوان کھیلوں کے میدان کی سہولت سے محروم ہیں۔ کھلاڑی شہر کے کالج، گلی محلوں اور سڑکوں پر کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے رجب علی۔ بڑی آبادی رکھنے والے اور شہیدوں کے نام سے مشہور تحصیل خیرپور ناتھن شاہ اس دور جدید میں بھی کھیلوں کی دنیا سے محروم۔ شہر کے نوجوان کھلاڑی اور شائقین شہر کے ڈگری کالج اور شہر کے مختلف گلی محلوں اور روڈوں پر کھیلنے پر مجبور۔ کرکٹ گراؤنڈ نہ ہونے پر کھلاڑی اور شائقین کا کہنا ہے کہ سندھ کے دیگر چھوٹے موٹے شہروں میں حکومت کی جانب سے کرکٹ گراؤنڈ اور بڑے اسٹیڈیم دیے گئے ہیں، لیکن ہمارے شہر کے کھلاڑیوں کو کئی برس سے مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ہر تعلقے میں سہولت موجود ہیں گراؤنڈ کی، لیکن ہمارا ایسا تعلقہ ہے جہاں گراؤنڈ کی کوئی سہولت نہیں۔ بہت ہیں ایم پی ایم این اے ہمارے گراؤنڈ پہ آئے ہیں، اس کو ہم دعوت دی، بات کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی بھی ابھی تک ہمیں گراؤنڈ نہیں ملا۔ کرکٹ گراؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً ہم ڈگری کالج اور شہر کی گلی محلوں روڈوں پر کھیلنے پر مجبور ہیں۔ کوہات کی واحد رابطہ سڑک کا تعمیراتی کام 2 سال سے فنڈ کی عدم دستیابی کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے۔ اہل علاقہ نے منصوبے کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانے کا مطالبہ کر دیا۔ رپورٹ کریں گے علی بنگش۔ کوہاٹ کے سنگم پر واقع علاقہ کچائی کی واحد رابطہ سڑک جو کہ عرصہ 2 سال سے زیر تعمیر ہے اور کام سست روی کا شکار ہے۔ تعمیر ہونے والی سڑک کی سست روی کی وجہ فنڈ کی عدم دستیابی ہے۔ گزشتہ 1 سال سے 5 کلومیٹر سڑک پر روڑی اور خاکہ تو ڈال دیا گیا ہے، لیکن سڑک کی پختگی کی زیادہ عرصہ گزرنے کی وجہ سے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس حوالے سے اہل علاقہ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جناب اس روڈ کا 1 سال تقریباً پورا ہو گیا۔ ہم نے اپنے بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لی ہوئی ہیں اور روڈ کا کوئی حال ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ٹائر پڑتے رہتے ہیں ہمارے
हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं और मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे हाल पे रहम करें और इस रोड को पुख्ता कराएं। अहले इलाका ने अपने मुंतखब नुमाइंदों कौमी असम्बली शहरियार खान अफरीदी और सूबाई असम्बली ज़िया-उल-हक खान बंगश से इस मंसूबे की जल्द पे तकमील तक करवाने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। शिकारपुर में दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम, एक दूसरे पर डंडों, कुल्हाड़ियों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल। तसादुम के नतीजे में दोनों ग्रुपों के 11 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दोनों ग्रुपों में झगड़ा ज़रई ज़मीन के तनाज़े पर हुआ। कच्चा की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सड़कों की मरम्मत करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे उमर हयात साहू। कच्चा खूह अब्दुल हकीम शहरा जहाँ आमदोरफ्त के एतबार से अहमियत की हामिल है, वहीं पर कारोबारी तिजारती लिहाज से बहुत ही अहमियत रखती है। ये मसरूफ तरीन शहरा इंतजामिया और मुंतखब सियासी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी से गुज़श्ता कई सालों से बदहाली का शिकार है। सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, गाड़ियाँ खटारा बन गई हैं, मरीज अस्पताल जाने से पहले जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। टूटी सड़क के बायस मुख्तलिफ हादसातों से कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। लिहाजा शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया है कि जितना जल्द मुमकिन हो इस खस्ता हाल रोड को मुरम्मत करवा कर इस परेशानी से जान छुड़वाई जाए। उस शरीफ में आवारा कुत्तों ने डेरे डाल लिए। शहरियों में खौफ और हिरास फैल गया। बस्ती सियाल में 10 साल बच्चे को आवारा कुत्ते ने काट लिया। उस शरीफ में सख्त गजीदगी के वाकयात कम न हुए। आवारा कुत्तों के काटने से एक बच्चा जख्मी हो गया। जख्मी बच्चे को तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कुत्तों के काटने के मुतादिद वाकयात होने के बावजूद म्यूनसिपल इंतजामिया को होश न आया। शहरी खौफ के साए तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। एमडी एनफोर्समेंट टीम ने शहर भर में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए तमाम पुख्ता और आर्जी तजावजात गिरा दिए, जबकि सड़कों और फुटपाथ पर रखा सामान भी कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान शाहिद। पाकिस्तान पोर्टल सेल पर अवामी शिकायत का अजाला करते हुए मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की इन्फोर्समेंट टीम का क्रैकडाउन, तमाम गैर कानूनी पुख्ता तमीरात को मसमार कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर आरिफ जिया गुज्जर कहते हैं कि कानून से कोई बालातर नहीं। बगैर मंजूरी के, बगैर नक्शे के वो जो मकानात या प्लाजे तमीर कर रहे हैं उनके खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। इसके अलावा ट्रैफिक के मसाइल के पेश नज़र हमने ये चौकों पे जो रेडियाँ हैं या जो दूसरे आदि तजावजात हैं उनको भी हमने ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिश की है। ऑपरेशन के दौरान डबल फाटक चौक, विहाड़ी रोड, BCG चौक, न्यू शाह शम्स हाउसिंग स्कीम, टिम्बल मार्केट पार्क, बोसन रोड, तासीर चौक, मॉडल टाउन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी आर्जी व पुख्ता तजावजात को खत्म करके सामान कब्जे में ले लिया, जबकि हैवी मशीनरी के इस्तेमाल के साथ भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। कैमरामैन मोहम्मद रमजान के साथ चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद, सच न्यूज़ मुल्तान। जेहलम इंतजामिया की कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कार्रवाई करते हुए ढोक मुनव्वर में वाक़या करोड़ों की सरकारी चरागाह अराजी वागुजार करा ली। जेहलम में डिप्टी कमिश्नर ने ढोक मुनव्वर में कार्रवाई करते हुए 2300 किनाल सरकारी चरागाह अराजी वागुजार करवा ली। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत पंजाब की वाज़ेह हिदायत हैं कि कब्जा माफिया और उनकी सरपरस्ती करने वालों से हुकूमत सख्ती से निपटेगी। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत की कि मेरठ पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखा जाए। जहाँ सरकारी और निजी ज़मीनों पर कब्जे किए गए हैं उनको हर हाल में वागुजार करवाया जाएगा। फिक्रे माश से कमसिन बच्चों से उनकी आंखों से ख्वाब, खेलकूद के अयाम और कागज़ व कलम छीन कर गली मोहल्लों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया है। कमसिन मजदूरों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। रिपोर्ट करेंगे आसिफ रजा। छोटे नजर आने वाले ये कमसिन मजदूर बच्चे दर हकीकत अपने घरों के बड़े होते हैं। इन्हीं से घर गृहस्थी का निजाम चल रहा होता है, जबकि ये बच्चे किसी टहनी पर लगे उन फूलों की मानिंद होते हैं जो सुबह की ठंडी हवा के चलने से झूमते हैं और खूब महकते हैं। हमारे मुल्क में कम उम्र बच्चों से मुतालिक चाइल्ड लेबर के खिलाफ कानून भी मौजूद है, फिर भी कमसिन मजदूरों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। माहिर कानून एडवोकेट हाई कोर्ट साईं बख्श का कमसिन बच्चों से मजदूर से मुतालिक सच टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हमारे मुल्क के माशरे के अंदर जो है कि ये बात आम है कि होटलों पे देखेंगे आप, घरों में देखेंगे, ये बच्चे जो हैं कि उधर काम करते हुए नज़र आएंगे। इनकी मेन वजह यह है कि माशी बदहाली और बेरोज़गारी की वजह से, ताकि इनके कोई गार्जियन में से कोई वफ़ात कर जाता है तो वो मजबूर हो जाते हैं इस चीज़ के। इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाए। हुक्काम बालों को चाहिए रोज़ बरोज़ बढ़ती कमसिन बच्चों की मजदूरी की रोकथाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर माली मुआवनत करे। कैमरा टीम के हमरा आसिफ रजा आशिक, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, नवाबशाह।
नौशहरा विरका के नवाही गांव में नहर का बंद टूट गया। बंद टूटने से पानी करीबी कब्रिस्तान और खेतों में दाखिल हो गया। पानी कब्रिस्तान में दाखिल होने से कब्रों को मुनहदम होने का खदशा, खेतों में पानी दाखिल होने से काश्तकार परेशान, निकासी का इंतजाम न हो सका। बंद टूटने के बाद मुकामी इंतजामिया मदद को ना पहुंच सकी। शहरी अपनी मदद आपके तहत बंद पुर करने पर मसरूफ हैं। आरिफवाला में महंगाई का तूफान न थम सका। ताजिर बिरादरी ने महंगाई के बायस कारोबार ठप होने पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। रिपोर्ट करेंगे नजीर अहमद। लिहाज से मसरूफ तरीन बाजार रेशम गली के ताजर भी महंगाई की वजह से हुकूमत पर बरहम और परेशान। इनका कहना है कि हर चीज में महंगाई इतनी कर दी है कि गाहक के पास पैसा ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारे कारोबार बंद पड़े हैं। ताजर बरादरी का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, बाजार में महंगाई बहुत है, गरीब पिस रहा है, यानी कारोबार है नहीं है, चीज़ें रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही हैं। ऐसे हुकूमत ने गरीब मारते हैं, घ्यो महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, हर एक चीज़ महंगी है। खान साहब, हमने वोट डाला आपको इसी वजह से कि आप मुल्क की हालात बेहतर करेंगे। अल्लाह जानता है इतनी महंगाई है, इस महंगाई के दौर में गरीब दिन ब दिन पिसता जा रहा है। जब से ये हुकूमत आई हमारे कारोबार बंद पड़े हैं और घरों में फाके हैं। घी, चीनी, दालें, आटा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे की वजह से लोग बहुत तंग और परेशान हैं। इनके पास खरीदारी के लिए पैसा ही नहीं। जब गाहक ही नहीं आएंगे तो हमारे कारोबार कैसे चलेंगे। हुकूमत होश के नाखन ले, महंगाई को कम करके गरीब आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन फैज फरीद के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। टोबा टेक्सिंग में महंगाई का सुनामी आ गया। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। अशिया खुर्नोश की कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। टोबा टेक्सिंग में 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। जिला भर में टमाटर 60 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 85 रुपए किलो, लहसुन 240 रुपए किलो और अदरक 400 रुपए किलो तक पहुंच गया है। चीनी 115 रुपए किलो और चक्की का आटा 80 रुपए किलो तक आवाम को मिल रहा है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी नापैद हो चुका है। दूसरी जानब हुकूमती ऐलानात और दावों से आवाम हुक्मरानों से मायूस नजर आते हैं। 20 किलो आटे की थैली 1280-1300 रुपए में फरोख्त हो रही है। जिली इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ इस पे कोई अमल नहीं कर रही। नून लीग हुकूमत से ये कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन ये उस दौर के में आटे की कीमत देखें और आज में देखें, ये कहते तब्दीली आ गई है। कहाँ की तब्दीली आ गई है। अवाम का हुकूमत से मुतालबा है कि रोजमर्रा की शाय खुर्दनोश की कीमतों में कमी करके रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि गरीब आदमी आसानी से अपनी जिंदगी बसर कर सके। झेलम के नवाही इलाके दीना में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मुल्क में बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। अवाम ने हुकूमत से एलपीजी की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन शाह। तहसील दीना में महंगाई का तूफान थम न सका। आए दिन बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों का जीना अजीरन का रखा है। इस शय खुर्दनोश के बाद अब एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें भी आसमानों से बातें करने लगी हैं। सच न्यूज़ से बात करते हुए शहरियों का कहना था, जनाब मैं सिलेंडर लैन आया जिसकी कीमत है 2060 रुपया। गरीब बंदा जो 800 का मुलाजम है वो किस सिलेंडर मतलब अफोर्ड करे। हुकूमत को चाहिए कि सिलेंडर ने जनाब कि इनको कट किया जाए। घरेलू गैस सिलेंडर 1800 से 2000 में फरोख्त हो रहा है, जिसके बेस महंगाई में पिछड़ी अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। न के शहरियों ने हुकूमती वक्त से मुतालबा किया है कि एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में वाज़ेह कमी की जाए और हमें रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। लाल सुहारा में महंगाई का नया तूफान आ गया। ब्रायलर की एक बार फिर ऊंची उड़ान। मुर्गी का गोश्त मजीद 7 रुपए महंगा हो गया। फी किलो कीमत 192 रुपए कर दी गई है। शहरी महंगाई के बायस शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे राशिद लतीफ। लाल सुहाना में महंगाई गरीबों की जान पर बनाई। मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतों से गरीब के लिए मुर्गी खरीदना एक ख्वाब बनकर रह गया है। गरीब 400-500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला मजदूर कहां जाए। शहरियों का कहना था कि मुर्गी की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। गरीब आदमी क्या चीज़ ले, घी ले, आटा ले या चीनी ले। खुदारा हुकूमत पंजाब से अब मुतालबा करते हैं कि मुर्गी की कीमत में और जो दूसरे खुर्दो नशिया हैं, ठीक है ना, उसकी कीमत में कमी लाई जाए। ज़रूरियाती अशिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफा समझ से बालातर है। सखर में जहां एक तरफ महंगाई का तूफान आया है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इंतजामिया यूटिलिटी स्टोर्स पर गैर मयारी चीजें फरोख्त करने लगी है। इसी हवाले से मसीह जानिए हाजी रियाज की रिपोर्ट में। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए यूटिलिटी स्टोर्स रोशनी की किरण थे, लेकिन इस हुकूमत की ना रुकने वाली महंगाई की हवा ने इस किरण को बुझाकर अंधेरा ही अंधेरा कर दिया है। आटा, घी, तेल, चीनी व दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाकर गरीबों की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। इतनी चीनी महंगी कर दी, आटा महंगा कर दिया, घी महंगा कर दिया। हम बेवा औरतें सारा दिन घरों का काम करें या बच्चे पालें। एक तरफ यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगी अशिया मिल रही हैं तो दूसरी अशिया नाकस हैं। आटे में कीड़े और घी, तेल की बदबू
खानों को खराब कर रही है, जो खाने के काबिल भी नहीं है। कैमरामैन अदनान राजपूत के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज, सच न्यूज सक्कर। सनामा में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। गिरा फरोश मनमाने रेट्स पर चीजें फरोख्त करने लगे। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। गवर्नमेंट की पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के साथ ही सिनामा और गिरदुनवा में सब्जी फरोशों ने खुद साख्ता महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। 40 रुपए किलो वाला टमाटर 60 और 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 80 रुपए किलो बिकने वाला करेला 100 रुपए में और 400 रुपए किलो बिकने वाली अदरक 600 रुपए में फरोख्त हो रही है। हुकूमत की तरफ से रेट को चेक करने वाला कोई भी इदारा फाल नहीं। शहरियों ने हुकूमत से अशिया खुर्दनोश खास तौर पर सब्जियों के रेट्स को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। शब कदर में महंगाई का सुनामी आ गया। बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत का अवाम को रिलीफ देने के वादे हवा हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नादिर शाह। कौमी वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शिरपौन ने जिला चारसद्दा की तहसील शब कदर के यूनियन कौंसिल रशकई में पार्टी रहनुमा हाजी गुल यूसुफ मोहम्मद की रिहाइश गाह पर एक बड़ी शमूलियती जलसे से खिताब करते हुए कहा कि PTI हुकूमत ने 3 साल दौरे हुकूमत में अशियाई खुर्दनोश और दीगर अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा करके अवाम का जीना हराम कर दिया है। आफ्ताब अहमद खान शिरपौन ने कहा कि आटा, चीनी, घी, अद्वियात, पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली से गैस की कीमतों में इजाफा करके पिछली हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो समझ से बालातर है। उन्होंने कहा कि कौमी वतन पार्टी बल्दियाती इलेक्शन और आम इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी और अवाम को मसाइल और मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। सैयद नादिर शाह, सच न्यूज़, शब कदर। 21 सितंबर से जेलम में पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 5 दिन तक जारी रहेगी। रिपोर्ट करेंगे बाबर हुसैन। पंजाब भर की तरह जेलम में भी पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम का आगाज DHQ अस्पताल जेलम में डिप्टी कमिश्नर राव परवेज अख्तर और CO हेल्थ डॉक्टर वसीम इकबाल ने 1 से 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाकर कर दिया। ये 1,91,068 बच्चों का टारगेट है। 808 हमारी टीमें हैं और 20 तारीख से लेकर 24 सितंबर तक ये मुहिम जारी रहेगी। मेरी जैसे DC साहब ने भी कहा है, मेरे भी इल्तमास होगा पेरेंट्स से और सबसे कि अपने तमाम बच्चों को जो हैं वो ये कतरे भी पिलाएं और विटामिन A के कैप्सूल भी पिलाएं। जेल में 808 टीमें तश्कील दे दी गई हैं, जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। जिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे उनको विटामिन A कैप्सूल भी दिया जा रहा है। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, जेहलम। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। गढ़ में डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। 20 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम में 2529 टीमें घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएंगी। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ अमजद शुएब तरीन ने जिला सदर अस्पताल में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर CO हेल्थ डॉक्टर महार मोहम्मद इकबाल, MS अस्पताल डॉक्टर फैसल रजा व दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर अमजद शुएब तरीन और CO हेल्थ डॉक्टर महार इकबाल का कहना था कि 20 सितंबर से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम के लिए 2529 टीमें तश्कील दी गई है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, आज हमने पोलियो की कैंपेन, NID की कैंपेन है जो उसका इफ्तिताह किया है। हमने इन 3 दिनों में जो 2 दिन कैचअप भी होंगे, टोटल 5 दिन होंगे। इन 5 दिनों में हमने 9 लाख बच्चों को मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पोलियो के कतरे पिलाने हैं। पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 9 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। इंतजामिया हरकत में आ गई। चकवाल में अरसा दराज से खस्ताल भवन रोड की मरम्मत का काम शुरू हो गया। इस रोड पर 12 करोड़ रुपए की खतीर रकम खर्च होगी। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। MPA व चेयरपर्सन हायर एजुकेशन स्टैंडिंग कमेटी पंजाब आसिया अमजद ने चकवाल और बोन की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया। अरसदराज से खस्ताहाल बोनता चकवाल रोड का इफ्तिताह MPA आसिया अमजद सूबाई वजीर हायर एजुकेशन व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राजा सुलेमानी सरफराज ने किया। इस मौके पर सरदार नजफ हमीद, मलिक अख्तर शहबाज, काजी तनवीर, काजी महमूद भी उनके हमरा थे। मेहमानों का जलसा आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। जलसे से खिताब करते हुए MPA आसिया अमजद का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मेरी दरख्वास्त पर चकवाल ता बोन रोड 13 किलोमीटर सड़क की मंजूरी दी और इसे सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करके इसके लिए 12 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं। जबकि जिले सदर यूथ विंग चकवाल चौधरी एहसन जैद की क़यादत में नौजवानों की बड़ी तादाद ने जलसे में शिरकत की। कैमरामैन अजय तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। पाकिस्तान में कोरोना की खतरनाक लहर, वायरस मजीद 71 जिंदगियां निकल गया। जहां भाग होने वालों की मजमूई तादाद 27,206 हो गई। 24 घंटों में 2,580 नए केसेस सामने आए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 4.68% रही। मुल्क भर में तशवीशनाक केसेस की तादाद 4,964 हो गई है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ECB में खातून असिस्टेंट कमिश्नर का कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराना ताजिर बिरादरी को पसंद न आया। अंजुमन ताजरान ने हड़ताल की कॉल दे दी। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक।
लातों, मुक्कों और घूसों की बरसात, ये मनाजिर है सिब्बी के मेन बाजार जिना रोड के, जहां पर गुज़िश्ता शब खातून असिस्टेंट कमिश्नर को अंजुमन ताजरान को कोरोना SOPs पर अमल दरामद करने का कहना जुर्म बन गया, जिसके बाद अंजुमन ताजरान के एक ग्रुप ने शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी तो दूसरे ग्रुप ने मुस्तरद कर दी, जिसके बाद मुल्क की माशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत माने जाने वाले ताजिर एक दूसरे के दस्ते गिरबां हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा निकली थी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के अहकाम पर अमल दरामद करते हुए कि भी SOPs पर अमल करें। इस लिहाज से वो एक दुकान पर गई तो वहाँ उसने वो अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जायज़ तरीके से उन पर कुछ चालान वगैरह किया। वो पर एक दुकानदार निकल के सारी बाजार को जबरदस्ती बंद करवाने के लिए निकले। दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम की इत्तला मिलते ही सिटी पुलिस ने जाए वक़्आ पर पहुंचकर मुश्तिल अफराद को मुंतशिर कर दिया। तमाम तर सूरत हाल के दौरान सिब्बी के मेन शाहराहों पर कई घंटे तक ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज से बी। वायरस का फैलाव रोकने के जतन मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन की जा रही है। इतवार वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए मखसूस NCOC के मुताबिक दूसरी डोज लगवाने के मुंतज़िर मुकर्रर वक्त मुकम्मल होने के बाद करीबी सेंटर से वैक्सीन लगवा लें। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर चिन्योट पुलिस का पेशावर भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल रहमान कलियार। पंजाब हुकूमत के अहकामात पर चिन्योट पुलिस का पेशावर बकारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। चिन्योट पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से 15 से ज्यादा पेशावर बकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। बकारियों के खिलाफ 9 पंजाब ऑर्डिनेंस 1958 के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए। चिन्योट पुलिस की तरफ से ये एलानिया जारी किया गया है कि शहरी पेशावर बकारियों गदागरों की हौसला शिकनी करें और बकारियों की मौजूदगी की इतला पुलिस को 15 पर दें। कैमरामैन अली के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। टांग के नवाही इलाके में डाकुओं ने 2 शहरियों से मोटरसाइकिल छीन ली। पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। टांग में चोरों की वारदातें जारी हैं। शहरियों से मोटरसाइकिल छीनकर डाकू फरार हो गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डाकुओं को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल बरामद कर ली। विहाड़ी पुलिस की जानिब से थाना दानेवाल में एंटी वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया गया, जिसका मकसद खवातीन से मुतल्लिका जराइम की रोकथाम, हिरासा और तशद्दुद के मर्तकब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद नदीम। विहाड़ी पुलिस की जानिब से थाना दानेवाल में एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल कैंप कर दिया गया, जिसका मकसद खवातीन से मुतल्लिका जराइम की रोकथाम, मुकदमात की मेड़ पर तफ्तीश और खवातीन को हरासा और तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाना है। खवातीन के लिए एक वुमेन हरासमेंट सेल बनाया गया है जिला विहाड़ी में, जिसमें हमारी फीमेल ऑफिसर तैनात की गई हैं जो 24 आवर वहाँ मौजूद रहेंगी। ये सेल हमने थाना दानेवाल जिला विहाड़ी में बनाया वहाँ पे, और इसका मकसद ये है कि औरतों पे होने वाले जराइम या उनके मसाइल को प्रायोरिटी बेसिस पे हल किया जाए। और ये IG साहब के हुक्म से हम लोग फौरी तौर पे उनको इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे, और इंशाल्लाह इसमें बड़ी बेहतरी आएगी। औरतों के मसाइल सुनने में मर्द पुलिस अफसर के पास जाकर ज़रा उनको अपना मसला बयान करना मुश्किल होता है, इसलिए वहाँ पे औरतें तैनात की गई हैं। लेडीज़ पुलिस अफसरान वो ही उनकी बातें सुनेंगी, वो ही कार्रवाई करेंगी। विहाड़ी SP इन्वेस्टिगेशन मियां रऊफ ने बताया कि खवातीन समेत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। खवातीन जहाँ भी हों, किसी परेशानी या तशद्दुद की सूरत में एंटी वुमेन हरासमेंट वायलेंस सेल ऐप के जरिए अपने फ़ोन के जरिए बराह रास्त पुलिस से मदद तलब कर सकती हैं। मुतासरा खवातीन को कानून के तकाज़े पूरे करते हुए इंसाफ की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन राशिद अली के साथ मोहम्मद नदीम लक, सच न्यूज़, विहाड़ी। काले की मंडी के थाना कालिके में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें SP इन्वेस्टिगेशन नईम अजीज सिंधु ने लोगों के मसाइल सुने और मौके पर उनके तदारुक के लिए अहकाम जारी किए। रिपोर्ट करेंगे इमरान खुर्शीद। PO हाफिजाबाद के हुक्म पर SP इन्वेस्टिगेशन नईम अजीज संधू ने पुलिस थाना काले की मंडी में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी का आगाज SHO थाना काले की हाफिज शब्बीर अहमद ने तलावते कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से किया। खुली कचहरी में SP इन्वेस्टिगेशन ने अवाम के मसाइल सुने और मौका पर उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। कैमरा टीम के हमरा इमरान खुर्शीद, सच न्यूज, काले की मंडी।
शुजाबाद में नवाब शुजा खान के दौरे हुकूमत में तैयार की जाने वाली 250 साल कदीमी फसील और खुलफाए राशिदीन के नाम से चारों दरवाजे महकमा आसार कदीमा की अदम तवज्जही के बायस अपनी शनाख्त खोने लगे हैं। मजीद जानिए वजाहत हुसैन की रिपोर्ट में। तैयार की जाने वाली 250 साल कदीमी फसील पर महकमा आसार कदीमा और लोकल गवर्नमेंट की अदम तवज्जही के बाद कदीमी फसील के खुलफाए राशिदीन के नाम से मंसूब चारों दरवाजों के ऊपर के इसे जो बेयारो मददगार खड़े हैं, किसी भी वक्त बड़े हादसे को जन्म दे सकते हैं। जबकि फसील पर मुख्तलिफ जगहों पर 62 शख्सियात ने कब्जा किया हुआ है। हुकूमत की जानिब से फसील पर चिस्पा की जाने वाली प्लेट जिस पर वज़ा अल्फाज में लिखा हुआ है कि फसील को नुकसान पहुँचाने की सूरत में जुर्माना और सजा हो सकती है, और कानून शिकना अनासिर जगह जगह से फसील तोड़कर दुकान और घरों में शामिल करने का सिलसिला जारी है। 4 दरवाजे हैं, ये शुजाबाद का विरसा है, कौमी विरसा है, और ये इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं। हम अंजुमन ताजरान की तरफ से ये अपील करते हैं हुकाम से कि इनको रिपेयर किया जाए, इनकी देखभाल की जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद नासिर शहजाद डोगर का कहना था रिस्टोर करने के लिए, इसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी विजिट किया था, और जो है उन्होंने साथ में जो इंस्ट्रक्शन भी दे दी हैं कि फौरी तौर पे जो है कंसर्न डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके जो है इनको जो है रेनोवेट कराया जाए। विरसा किसी भी कौम का असासा होता है, जहां आवाम की जिम्मेदारी है कि इसकी देखभाल करे, वहीं आसार कदीमा को भी चाहिए इसकी हिफाजत करे। कैमरामैन मुबशिरुल हक कैमरा वजाहत हुसैन, सच न्यूज़, शुजाबाद। कोटद्दू में आज भी मिट्टी के बर्तन बनाने की रिवायत बरकरार है। रिपोर्ट करेंगे इसाक काज़मी। कोटद्दू शहर में मिट्टी के बर्तन बनाने की कुम्हारों की नस्ल दर नस्ल चली आ रही रवायत इस दौरे जदीद में आज भी जिंदा है। मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल के बहुत फवायद हैं। मिट्टी की हांडी के सालन का अपना ही टेस्ट होता है। डारे पर डारे तो अपना काम आंदा पाए, खानदानी काम है, अपना रोजी करने बैठे हैं। मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना सुन्नत है, और मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने से इंसान बीमारियों से बचा रहता है। कारीगर मिट्टी से पानी पीने के गिलास, चाय के कप, सालन के लिए प्लेटें, पानी के लिए मिट्टी का घड़ा और कूलर, बच्चों के खेलने के लिए मिट्टी के खूबसूरत खिलौने अपने फन से तैयार करते हैं। आजकल जैसे बीमारियां आए हुए हैं, ये सारा जास स्टील इसकी वजह से है। मिट्टी के बर्तन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छे होंगे। आजकल जड़ी बीमारियां थी गन ये सिर्फ जो प्लास्टिक वाले बर्तन हैं या मकसद ये सिल्वर वाले या स्टील वाले इन्हों के वजह को होता है बीमारी थी। महंगाई के इस दौर में बर्तन बनाते ये कुम्हार सेल कम होने का रोना रोते भी नजर आए कि इस कारोबार से घर बहुत मुश्किल से चलता है। मेहनत ज्यादा है, लेकिन अपने इस आबाई हुनर को बरकरार रखने के लिए मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज़, कोटद्दू। मर्दान से खबर शामिल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा महकमा तालीम में मार नहीं प्यार सिर्फ नारा साबित हुआ। सरकारी स्कूल का उस्ताद प्रिंसिपल जलाद बन गया। मर्दान के इलाके ढेरी लेक पानी में उस्ताद और प्रिंसिपल का बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद। क्लास में शोर कंट्रोल न करने पर पहले उस्ताद फिर प्रिंसिपल ने मारा। बच्चे की हालत गैर होने पर करीबी अस्पताल और फिर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। 8वीं क्लास का तालिब सरफराज पहले से गुर्दों का मरीज है। स्कूल प्रिंसिपल और उस्ताद के खिलाफ थाना काटलिंग में मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। उस्ताद अवैस गुल को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आपको खबर दे रहे हैं मर्दान से। खैबर पख्तूनख्वा में मार नहीं प्यार का नारा सिर्फ नारा ही साबित हुआ। सरकारी स्कूल का उस्ताद और प्रिंसिपल जल्लाद बन गए। मर्दान के इलाके ढेरी लेक पानी में उस्ताद और प्रिंसिपल का बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद। क्लास में शोर कंट्रोल ना करने पर पहले उस्ताद फिर प्रिंसिपल ने मारा। बच्चे की हालत गैर होने पर करीबी अस्पताल और फिर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। 8वीं क्लास का तालिब सरफराज पहले से गुर्दों का मरीज है। स्कूल प्रिंसिपल और उस्ताद के खिलाफ थाना काटलिंग में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक उस्ताद अवैस गुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से आपको खबर दे रहे हैं। मर्दान में महकमा तालीम के मार नहीं प्यार के नारे सिर्फ नारे साबित हुए। सरकारी स्कूल का उस्ताद और प्रिंसिपल जल्लाद बन गए। मर्दान के इलाके ढेरी लेक पानी में उस्ताद और प्रिंसिपल का बच्चा बदतरीन तशद्दुद। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं मंजूर हुसैन से। मंजूर, उस्ताद के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा महकमे तालीम में मार नहीं प्यार सिर्फ नारा साबित हुआ है। सरकारी स्कूल का उस्ताद और प्रिंसिपल जल्लाद बन गया। मर्दान के इलाका डेरी लेकपानी में उस्ताद और प्रिंसिपल का बच्चे पर बदतरीन तशद्दुद किया है। क्लास में शोर कंट्रोल न करने पर पहले उस्ताद फिर प्रिंसिपल ने मारा है। इसके हवाले से जो है जो वजीर तालीम है शराब तरक्की ने भी नोटिस ले लिया है और उन्होंने कह दिया है कि जो मुलविस एहलकार है उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया मंजूर, आप अपडेट कर रहे थे।
قبائلی ضلع محمد میں خونی تصادم تحصیل حلیم زئی میں 2 فریقین کے درمیان زمین کا تنازع، معمولی تکرار کے بعد گولیاں چل گئیں، 3 قتل ہوئے، 2 زخمی ہو گئے، زخمی علاج کے لیے اسپتال منتقل، پولیس موقع پر پہنچ گئی، تحقیقات جاری ہیں۔ قبائلی ضلع محمد میں خونی تصادم تحصیل حلیم زئی میں 2 فریقین کے درمیان زمین کا تنازع، معمولی تکرار کے بعد گولیاں چل گئیں، 3 قتل جبکہ 2 زخمی ہو گئے، زخمی علاج کے لیے اسپتال منتقل، پولیس موقع پر پہنچ گئی، تحقیقات جاری ہیں۔ دریائے چناب چنیوٹ کے پہاڑوں کے سنگم میں واقع چندن قلعہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، رپورٹ کریں گے عبد الرحمان کلیار۔ چنیوٹ پہاڑ اور دریا کے سنگم کے یہ خوبصورت اور دلکش مناظر ہیں۔ چنیوٹ سے چند قدم کے فاصلے پر بہتے دریائے چناب کے کنارے واقع چندن قلعہ کا جو تاریخی لحاظ سے انتہائی اہم اہمیت کا حامل ہے۔ اس قلعے کے بارے میں مشہور ہے کہ اس قلعے کے آس پاس ہندوستان کی ایک شہزادی چندن مخت موریہ مردوں کا بیس بدل کر آتی تھی اور قلعے میں قیام کرتی تھی۔ چندر قلعے کے بارے میں ہم نے سنا ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک چندر رانی ہوتی تھی جو یہاں پہ مردوں کے بھیس میں آتی تھی اور شکار کرتی تھی، رات کو قیام کرتی تھی اسی قلعے میں۔ تو ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، بہت خوبصورت منظر ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد اس قلعے کو دیکھنے کے لیے شہر چنیوٹ کا رخ کرتی ہے اور سیاح ان مناظر اپنے موبائل فون میں محفوظ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرہ مین علی کے ساتھ عبد الرحمان کلیار، بیورو چیف سچ نیوز چنیوٹ۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ سکھر سے آپ کو خبر دیں گے، سول اسپتال کے قریب ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی۔ ٹرانسفارمر میں آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سول اسپتال سمیت پورے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا ہے۔ سکھر سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، سول اسپتال کے قریب ٹرانسفارمر میں آگ لگ گئی۔ ٹرانسفارمر میں آگ لگنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ سول اسپتال سمیت پورے علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے آگ پر فوری طور پر قابو پا لیا۔ کورونا قابو میں آیا نہیں، ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا۔ لاہور اور پشاور سمیت کئی شہروں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈینگی کے مریض رپورٹ ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں بڑھتے رش نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ طبی ماہرین نے ضروری حفاظتی اقدامات ضروری قرار دے دیے ہیں۔ کورونا قابو میں نہیں آیا، ڈینگی بھی سر اٹھانے لگا۔ لاہور اور پشاور سمیت کئی شہروں میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈینگی کے مریض رپورٹ ہونے لگے۔ ہسپتالوں میں بڑھتے رش نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ طبی ماہرین نے ضروری حفاظتی اقدامات ضروری قرار دیے ہیں۔ ادھر شکرگڑھ میں مددگار 15 پر ڈکیتی کی جھوٹی کال مہنگی پڑ گئی۔ کال کرنے والے کو حوالات کی سیر کرنا پڑ گئی۔ پولیس کے مطابق ریاض نامی شخص نے 15 پر کال کی نامعلوم ملزمان نے اس سے 16 لاکھ روپے چھین لیے ہیں۔ شک گزرنے پر ریاض کو شامل تفتیش کیا تو اس نے سچ اگل دیا۔ ملزم کے مطابق اس نے ادھار کی رقم واپس کرنا تھی، اس لیے ڈرامہ کیا۔ شکرگڑھ میں مددگار 51 ڈکیتی کی جھوٹی کال مہنگی پڑ گئی۔ کال کرنے والے کو حوالات کی سیر کرنا پڑ گئی۔ پولیس کے مطابق ریاض نامی شخص نے 15 پر کال کی، نامعلوم ملزمان نے اس سے 16 لاکھ روپے چھین لیے ہیں۔ شک گزرنے پر ریاض کو شامل تفتیش کیا تو اس نے سچ اگل دیا۔ ملزم کے مطابق اس نے ادھار کی رقم واپس کرنا تھی، اس لیے ڈرامہ کیا۔ ایف آئی اے سکھر کی لاڑکانہ میں بڑی کارروائی، شہید بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر گرفتار کر لیے گئے۔ ایف آئی اے کے مطابق انجینئر عبدالوحید منگی کو 40 کروڑ سے زائد کرپشن کے کیسز میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عبدالوحید منگی 2011 میں تعمیر ہونے والی شہید بینظیر میڈیکل یونیورسٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے۔ کرپشن کیس میں دیگر ملزمان بھی نامزد، تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ ایف آئی اے سکھر کی لاڑکانہ میں بڑی کارروائی، شہید بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے سابق پروجیکٹ ڈائریکٹر گرفتار۔ ایف آئی اے کے مطابق انجینئر عبدالوحید منگی کو 40 کروڑ سے زائد کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عبدالوحید منگی 2011 میں تعمیر ہونے والی شہید بینظیر میڈیکل یونیورسٹی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے۔ کرپشن کیس میں دیگر ملزمان بھی نامزد، تفتیش کا دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ ہری پور کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی نوری آبشار خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ سیاحتی مقام کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ رپورٹ کریں گے نعیم اللہ خان۔ تو ہزارہ میں بہت ہی زیادہ سیاحتی مقامات اور قدرتی مناظر سے مالا مال ہے۔ اونچے اونچے پہاڑ، گھنے جنگلات، ٹھنڈے پانی کے چشمے اور بہتی ندیاں ہیں، اور یہ آبشاریں قدرتی مناظر کو چار چاند لگاتی ہیں۔ اللہ کا دیا ہوا ہزارہ کو یہ تحفہ ہیں۔ اس طرح ہری پور سے 40 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 25 کلومیٹر پر جبری کے مقام پر نوری آبشار، بلیک واٹر آبشار اپنی خوبصورتی کے مناظر پیش کر رہی ہیں۔ جامع امام خمینی ماڑی انڈس میاں والی میں چہل میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر کربلا میں روزہ امام حسین علیہ السلام پر لہرانے والے علم مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی۔ رپورٹ کریں گے زاہد عباس۔
जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियाँ वाली में 10 अप्रैल मुजफ्फर को चेहलम सईद उल शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मजलिस अज़ा व मातमदारी का एहतमाम किया गया। मजलिस अज़ा से खिताब करते हुए मौलाना नेमतुल बाकरी ने कहा कि दीन का सतून नमाज है, नमाज कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया है। मजलिस अज़ा के बाद ज़िला भर से मातमी संगतें जामिया इमाम खुमैनी में तशरीफ़ लाकर नवाखानी और मातमदारी करती रहीं। इस मौके पर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में लहराने वाले अलम मुबारक की ज़ियारत भी कराई गई। प्रोग्राम के आखिर में चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट अल्लामा सैयद ज़फ़र हुसैन नकवी ने मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआएं की। तू सारे जिक्र को नहीं मिटा सकता, क़यामत तक सारा जिक्र बाकी रह सकता। ये जिक्र की अलामत है, बीबी का ऐलान है। उस ऐलान का नतीजा है कि जैसा हुसैन हुसैन करते पाया, आज जिक्र भी बाकी है, कुरान भी बाकी है। आए अल्लाह उस बीबी का वास्ता देने, उनके दुखों का वास्ता देने, उन्हें तकलीफों का वास्ता देने, सारे वली को इज़्ज़त फरमा दे, ज़हूर जल्द हो ताकि दुनिया को फितने खत्म हो, शर खत्म हो, तेरे निज़ाम का नफाज हो। 10 अप्रैल मुजफ्फर को जामिया इमाम खुमैनी माड़ी इंडस मियाँ वाली में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के प्रोग्राम के बाद ज़िला भर में चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से मजालिस अज़ा का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो 20 सफ़र तक जारी रहता है। कैमरामैन नियाज़ शाह के साथ जाहिद अब्बास, सच न्यूज़ मियाँ वाली। अगले हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात कल से 24 सितंबर तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश का इम्कान। जुमेरात से हफ्ते तक कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आपको खबर दे रहे हैं कि मौसम की बदलती रुतों के हवाले से अगले हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। कल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से 24 सितंबर तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात से हफ्ते तक कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मौसम की बदलती रुतों के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि अगले हफ्ते मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। कल से मानसून हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से यानी कि 24 सितंबर तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जुमेरात से हफ्ते तक कराची में भी मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। मजीद जान लेते हैं सज्जाद काजबी से। सज्जाद, महकमा मौसमियात की जानिब से क्या बताया गया है? सज्जाद, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आगाह कीजिएगा मौसम की बदलती रुतों के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है। महकमा मौसमियात की तरफ से अगले हफ्ते से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है और इस तरह बताया जा रहा है कि कल से मानसून हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो जाएंगी, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बारिश होने का इम्कान जारी किया जा रहा है। इस तरह बताया जा रहा है कि 24 सितंबर तक जो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश का जो है इम्कान जारी किया गया है और इस तरह महकमा मौसमियात की तरफ से बताया जा रहा है कि जुमेरात से हफ्ते तक कराची में भी मूसलाधार बारिश जो है वो होगी। जी सजाद, ये बताएगा इस हवाले से मजीद क्या कहा गया है कि मानसून का जो सिलसिला है बलाई इलाकों में दाखिल हुआ है, मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहेगी या वहां पर भी बारिश इम्कानात हैं? क्योंकि हल्की हल्की बारिश का इम्कान जारी किया जा रहा है, जिसमें मैदानी इलाकों में अगर बात करें, अकरक है, इस तरह जम्मू है, इस तरह पंजाब के वाले से अगर बात की जाए तो झेलम है और गुजरात और इस तरह मंडी बहाउद्दीन में भी हल्की हल्की बारिश का जो है इम्कान जारी किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये जो सिलसिला है बारिशों का ये कल से शुरू होगा और जुमेरात तक जारी रहेगा, जबकि जुमेरात से हफ्ते तक जो है जो गवादर के इलाके हैं और इस तरह बात करें अगर कराची है और इस तरह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश जो है उसका इम्कान जारी किया गया है। जी सही। सजाद, ये भी कहिएगा कि बारिश के बाद हमने देखा है कि इस्लामाबाद के चंद इलाकों और पिंडी के चंद इलाकों में पानी जमा हो जाता है। इस हवाले से भी क्या इंतजामिया की जानिब से कोई इंतजाम किए गए हैं? ये महकमा मौसमियात की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि चूंकि हम प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बारिश होगी, तो इस हवाले से जिली इंतजामिया जो है मुख्तलिफ इलाकों की, जिसमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो जिली इंतजामिया को यह आगाह किया गया कि बारिश होने का इम्कान है और मूसलाधार बारिश में अमूमी तौर पर ज़्यादा बारिश होती है, तो जिसके बाद जिली इंतजामिया को मुतहरिक रहने का कहा गया और ये बताया गया कि जिली इंतजामिया अपनी चीजें जो है तस्दीक की जाए और इन इलाकों में जहाँ पर पहले की बारिश का पानी जमा हो जाता है वहाँ पर निकासियाब का जो है काम किया जाए और उसके बाद अगर बारिश होती है तो हर बारिश होती है तो उसके जो बर वक्त इकदाम के बाद जो है वहाँ पर पानी जमा होने से रोका जा सकेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद काज़मी, आप इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क में जारी महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। आज चीनी, घी, आटा सब कुछ महंगा हो गया। नैयर बुखारी ने कहा कि आज महंगाई के खिलाफ तलबा, मजदूर, हर तबके के अफराद को बाहर निकलना होगा।
पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ अपनी तहरीक शुरू कर दी। मजीद जानेंगे अलमदार बलोच से। जी अलमदार। जी बिल्कुल काशिफ, देखें कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है महंगाई के खिलाफ अपनी एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की है और आज इस हवाले से इस्लामाबाद अपारा चौक में जो है वो मुजाहरा किया गया, जिसकी सदारत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नज़ीर हुसैन बुखारी ने की। इस एहतजाज में जियालों की बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई और इसके साथ साथ जितने सूबाई और ज़िली रहनुमा थे वो भी इस एहतजाज में शरीक हुए। एहतजाज से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नज़ीर हुसैन बुखारी ने कहा कि ये हुकूमत जो है वो नाकाम हो चुकी है, 3 साल में महंगाई पर काबू नहीं पा सकी और आए रोज जो है वो महंगाई बढ़ती जा रही है। आज आटा, चीनी, घी जो है वो गरीब की पहुंच से जो है दूर हो चुका है। उनका कहना था कि अब मजदूर, तलबा, हर तबके के अफराद को जो है वो महंगाई के खिलाफ बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपनी जो है वो तहरीक शुरू कर दी और यह तहरीक अब पूरे मुल्क में जो है वो फैलेगी। जी सही, अलमदारी बताएगा जिस तरह से आपने कहा कि अब पीपल्स पार्टी की तहरीक पूरे मुल्क में फैलेगी, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर कोई प्लान जारी कर दिया है तहरीक का कि कौन कौन से शहरों में कब कब तहरीक निकाली जाएगी? आज बिल्कुल इस हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़ीर हुसैन बुखारी का कहना था कि एहतजाजी तहरीक का जो है वो आज आगाज इस्लामाबाद से हुआ है। इस तरह अब जो है पहले जो है वो सूबाई सतह पे मुजाहरे किए जाएंगे, जिली सतह पे जो है वो मुजाहरे किए जाएंगे महंगाई के हवाले से और हुकूमत की जो नाकिस कारकर्दगी है उस हवाले से, और फिर जो है मरकजी क़यादत बैठ के जब इसी आगे इजलास होगा पीपल्स पार्टी की मरकजी कोर कमेटी का, तो उसमें फिर जो महंगाई के खिलाफ हमारी फाइनल जो तहरीक होगी उसका ऐलान जो है वो मरकजी क़यादत और जो कोर कमेटी है वो बैठ के करेगी। ताहाल अभी जो है हम जिलाई और सूबाई सतह पर जो है वो मुजाहरे करने जा रहे हैं और इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि क्योंकि हुकूमत को जो है अब किसी भी सूरत कोई तबका जो बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, क्योंकि महंगाई जो है अपनी हदें पार कर चुकी है और आए रोज हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर रही है, जिसका सारा बोझ जो है वो गरीब पर पड़ता है, महंगाई में इजाफा होता है। तो उन्होंने कहा कि अब पीपल्स पार्टी क्योंकि अवामी जमात है तो पीपल्स पार्टी आज अभी अब आवाम के लिए निकलेगी और महंगाई के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएगी। सही, अलमदार ये भी कहेगा कि क्या इस एहतजाज में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जाले मौजूद होंगे या ऑपोजिशन दूसरी ऑपोजिशन पार्टियों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा? देखिए काशिफ, इस हवाले से तो अभी क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अपनी ही तहरीक का ऐलान किया है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो पीडीएम है यानी कि दीगर जो जमातें अपोजिशन की हैं वहां पर मौजूद हैं, वो अपने तौर पे जो वो तहरीक पहले से हुकूमत के खिलाफ चला रहे हैं। तो और लेकिन ये कि पीपल्स पार्टी और एएनपी का क्योंकि वो अभी पीडीएम से बाहर है, उनका आपस में राब्ते भी होते हैं। फिलहाल जो है पीपल्स पार्टी वो यानी कि अपनी तहरीक का ऐलान कर चुकी है, लेकिन क्योंकि महंगाई जो है वो अवामी इशू है तो इससे यही बताया जा रहा है, जराए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी दीगर जो एएनपी है और दीगर जो तबकात हैं मजदूर, तलबा, वकला, उनके साथ भी इस हवाले से जो है वो राब्ते करेगी और चाहेगी कि वो भी जो है वो इस तहरीक में शामिल हों और महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अलमदार बलोच, आप अपडेट कर रहे थे मुल्क में जारी महंगाई के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज। नज़ीर बुखारी ने कहा कि आज महंगाई के खिलाफ तलबा, मजदूर, हर तबके के अफराद को बाहर निकलना होगा। इस हाल में लोग उस वक्त रह रहे थे, इन 3 सालों में उनकी मुआशी बदहाली बदतरीन सतह पे पहुंच चुकी है। आज गरीब आदमी अपने बच्चों के लिए ना तो आटा खरीद सकता है, ना दूध खरीद सकता है, ना दवाई खरीद सकता है, ना बच्चों की फीस दे सकता है। तो हमें ऐसा नया पाकिस्तान को हम मुस्तरद करते हैं, हमें नहीं चाहिए। और इमरान खान, तूने एक भंडों का टोला अपने साथ रखा हुआ है जो आए दिन टेलीविजन पे लोगों को खुशखबरी सुनाने की कोशिश करता है, यह बावर कराने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तो पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल क्या तय कर रहा है कि आज से चंद अर्सा पहले घी 195 रुपए किलो था, आज घी 345 रुपए किलो हो गया। 2018 में चीनी 55 रुपए किलो थी, आज चीनी 110 रुपए किलो है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और इमरान खान, तुम कहते थे कि जब महंगाई बढ़ती है तो इसका मकसद है हुक्मरान चोर और डकैत है।
महंगाई ने ये साबित किया इमरान खान तुम बतौर वजीर आजम चोर हो, तुम्हारी कैबिनेट चोर है, और तब तुम ऐसे शख्सों पर बदयानत, तुम ऐसे बदयानत शख्स हो। इलाके खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। किसी भी इलाके या कौमी खबर के लिए SHTV.PK विजिट कीजिए और देखते रहिए सच न्यूज़।